Hello aspirants, welcome to History Masterclasses by Sit Talk. My name is Nikunj and I'll be your teacher for your entire lecture of history. This is Buddhism and Jainism, part of ancient India. So in our entire story of history, first of all we covered all of these in our classes till Mahajanpadas, and today we'll be covering Buddhism and Jainism around 550 BC. So this entire story, like I explained earlier, is the story of you. That is, each and every incident over here has taken place to ensure that you are sitting here where you are today. So let's continue with the next slide. Why is Jainism, Buddhism so important? You see, in every year, Buddhism, Jainism has shown a good amount of questions in UPSC prelims, except a few years. For example, in the year 2021 and 2025, zero questions were asked in UPSC prelims. But in every question, at least you can expect one question. Sometimes two, sometimes even three. So this makes it extremely important. Even in mains, every single question you will have some influence about Buddhism, Jainism. There is something called as art. If you look at the syllabus of history, you will find they are focusing more on art. Same thing you'll find here. If you look at questions in 2019, 16, 14 especially, you'll always find the mention of art. Early Buddhist stupa art, Gandhar's sculpture owed as much to the Romans as to the Greeks. They're always focusing on Buddhist art. So eventually this chapter makes us one of the crux, one of the most important chapters of entire ancient India. Let's begin with our story. So this is a four-parter video. This is just the first part and we'll be covering origins and early life of the Buddha here. Over here we will be covering historical context, causes for emergence. This will be very light and hope I am able to explain to you everything in a very simple and easy to grasp manner. That is the entire perspective of our studies. So as every single lecture goes on, for history, extremely important part, especially for UPSC, is potteries. For Mahajanpadas and Buddhism, Jainism, the pottery that were used was northern black polished ware. In entire history, whenever diggings are going on in archaeological sites, one thing that is very important is the pottery which they find. With that pottery, they are able to identify which period it belonged to. Over here, it is northern black polished ware. What is it? Just a few things: glossy, mirror-like black finish. Bowls and dishes, elites use करते थे इसको, nobody else. And this coincides with the second urbanization, that is large towns, punch mark points, iron tools, etc. And obviously, this was found mostly in the Gangetic plains. So अगर UPSC में क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में that which of the following potteries you mark, match the following, which of the following potteries with corresponding dynasties or corresponding eras, northern black polished ware will be Buddhism, Jainism and Mahajanpadas. That's it. Let's start with Buddhism now. So why it started? We are focusing on NCRT. So NCRT say that in the mid first millennium BCs, people were kind of getting settled. They were having a good amount of roti kapda makan with them. तो इंसान के पास जब रोटी कपड़ा मकान आ जाता है उसके बाद वो फिलोसॉफिकल चीज़ें सोचने लगता है बिकॉज ही सेटिस्फाइड. मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीज में महाजनपदास वर सेटलिंग डाउन एज वी एक्सप्लेन्ड इन द महाजनपदास लेक्चर. तो over here also what was happening was kingdoms, towns, trades were settling down, social classes were emerging. Vedic sacrificial system, the corrupt practices which entered the Indian society in the later Vedic period actually increased to some extent over here. This and that's why people were becoming a bit alienated, a bit fed up with all the systems, and many of them did not have a lot of money to carry out all those practices. In the same period, we find many other sects which were coming out. For example, Ajivikas were also coming out at this very point of time. So other currents of thought already existed, and this appealed to the people. So people were dissatisfied with ritualism and hierarchy, stressing conduct, compassion, करुणा एंड फीलिंग. एनसीईआरटीज के हिसाब से ये सारे रीजंस थे.
Now, when we are discussing why started और UPSC मेंस में अगर क्वेश्चन आता है, you are writing this too many rituals, Brahminical dominance, social change, debating environment, ethical focus. But where will you strike? आप कहाँ ये बता पाओगे एग्जामिनर को कि you know something more, you know something better? That's where this comes. First you write trader support. उन लोगों को ट्रेडर सपोर्ट मिलता था एंड दैट्स लॉजिकल एज वेल. आप सोच के देखो आज के ज़माने में कई सारे जैनाज जो हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द मर्सेंटाइल क्लास, सो यू कैन ईजिली राइट ट्रेडर सपोर्ट. देन एस्थेटिक ट्रेडिशन था उस समय ना, एक ट्रेडिशन था कि आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको अगर जानना है, देन इट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेड इन सोसाइटी कि आप घर बार छोड़ के चले जाओ. एस्थेटिज्म वॉज वेरी मच प्रोनाउंस्ड. थर्ड इज जोग्राफी ऑफ मगध. अब मगध ऐसे रीजन में था कि इट हैड एन एक्सेस थ्रू इट्स वाटर चैनल्स टू ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिया. ईस्ट इंडिया में वो वंगा की तरफ चला जा रहा है, वेस्ट इंडियन की तरफ चला जा रहा है, नॉर्थ की तरफ चला जा रहा है, एक्सेस चारों तरफ है. एंड इट वॉज ऑब्वियसली एक्सट्रीमली पावरफुल स्टेट. किंग्स लाइक बिम्बिसार ऑफ मगध, इनका पैट्रोनेज, दे वर ऑब्वियसली वन ऑफ द top kings, one of the most powerful kingdoms in the entire world, if not India. और इनका पैट्रोनेज मिलने का मतलब समझ सकते हो कितना पावरफुल है. सो आप आने वाली कुछ स्लाइड्स में कुछ चीज़ों पे ध्यान देना. सबसे पहले यहाँ पे जो सिंबल्स बताए गए हैं, और कुछ स्लाइड्स में आपको ऊपर एक नंबर दिखेगा, उन नंबर्स पे और सिंबल्स पे ध्यान देना बस. बुद्धिज्म, दिस इज जस्ट अ जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट बुद्धिज्म. अगर समझ में नहीं आता है बुद्धिज्म, इस चीज को रट लो. क्या क्या रटना है? नेम इनका क्या था? सिद्धार्थ. क्लैन वॉज शाक्या क्लैन. कैपिटल वॉज कपिलावस्तु. बट इज बर्थ प्लेस वॉज लुम्बिनी. नाउ यू नो इट वेरी वेल दैट द king of Shakya clan was the father of Lord Buddha, but he was not born in the capital. कैपिटल कपिलावस्तु है, लेकिन पैदा हुए लुम्बिनी में. कैसे? बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार उस समय द मदर ऑफ लॉर्ड बुद्धा वॉज एक्चुअली ट्रैवलिंग फ्रॉम कपिलावस्तु टू हर होम ग्राउंड. अपने मायके जा रही थी, रास्ते में लुम्बिनी पड़ता है, एंड दैट्स वेयर शी गेव बर्थ. हिज फादर्स नेम सुधोधन, मदर्स नेम माया. शी डाइड सून आफ्टर बर्थ. तो उसके बाद उनका टेक केयर किसने किया? हिज फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी. नाउ दिस नेम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट लेडी टू जॉइन Buddhist Sangh later on after Gautama became Buddha. So she was the first lady also to join Buddhist Sangh. Remember this fact. His wife's name Yashodhara, his son's name Rahula. He attained nirvana, enlightenment, and his first sermon was at Deer Park, Sarnath. Death was at Kushinara. Birth was at Lumbini. Death was at Kushinara. And capital of Shakya clan was Kapilavastu. Just very few important names which you have to remember. Remember this symbol, lotus, bull. So what happened to Sid? Sid के फादर ने, सुधोधन ने, अपना लड़के का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट निकाला. वहाँ उन्होंने पढ़ा, उन्होंने देखा, एंड दे केम टू द कंक्लूजन कि ये जो है ये एस्थेटिक बनेगा, ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर है. ये सुनकर सुधोधन के होश उड़ गए. सुधोधन ने क्या किया? सुधोधन ने सोचा कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगा. उसने गौतम बुद्ध को एक अपने पैलेस में लॉक करके रखा, उस पिंजरे में कैद रखा, वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं सब कुछ दी, लेकिन उसकी हार्ट की कॉलिंग कुछ और थी. ही लेफ्ट होम वंस. ही लेफ्ट होम एंड ही सॉ द रियलिटी ऑफ एजिंग, डिजीजेस एंड डेथ. बट ही सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ पाथ बियॉन्ड सफरिंग. He realized when he saw these three things कि इनसे छुटकारा नहीं है, ये तीनों एक टाइप ऑफ सफरिंग है, लेकिन there is an escape. What is that escape? A possibility of path beyond suffering. So he thought कि I can find this out, I can do this. और इसके साथ ये आगे बढ़े. At the age of 29, जो मैंने बोला था इस नंबर पे ख्याल रखना और नीचे के इस फिगर को ख्याल रखना. At the age of 29, he renounced worldly life to search for truth with Channa the charioteer and his favorite horse Kanthak. यूपीएससी इन सब चीज़ों में कभी कभी प्रीलिम्स में बदमाशी करता है, कभी कभी इतने फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेता है.
इसलिए इन सबको अलग से दिया गया है, रिमेंबर देम। इस इवेंट को बुद्धिज्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। याद करने का तरीका ये है कि जब वो अपना क्रम करने, किसी चीज का बहिष्कार करने वाले थे, उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। सिर्फ ये याद करने का तरीका है कि आपको याद रहे, महाभिनिष्क्रमण का मतलब है रिनाउंसिंग वर्ल्डली लाइफ टू सर्च फॉर ट्रुथ। नाउ जब वो आगे बढ़े ना, उनको काफी स्ट्रगल हुआ। उस समय की दुनिया में माना जाता था अलारा कलामा और उद्दका रामपुत्ता, ये लोग उस समय के बहुत नॉलेजेबल और बहुत महान आदमी थे इस फील्ड के। समझ लो आज के फॉर एग्जाम्पल आदि सदगुरु, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो इन लोगों के साथ इन्होंने मेडिटेशन किया, उन्होंने सीखा, बट उनको बताया गया कि यू कैन ऑपरेट लिबरेशन थ्रू मेंटल डिसिप्लिन एंड नॉलेज। प्रॉब्लम इसमें यह था कि व्हेन ही सैट डाउन फॉर दैट, उनको वो भाया नहीं, उनको लगा नहीं यार ये नहीं सूट कर रहा है। ही वेंट अहेड। नाउ एसेटिज्म का ज़माना था, सो उनको 5 वॉन्डरिंग एसेटिक्स मिले, कोंदना, भटिया, वप्पा, महामना और असाजी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा क्यों। इनका मेथड था अपने ऊपर एस्टोरिटीज करते रहो अंटिल यू बिकम वेरी थिन एंड वीक। ये मेथड भी लॉर्ड बुद्धा ने ट्राई किया कि चलो करके देख लेते हैं, हु नोज। अनफॉर्चुनेटली ये मेथड भी उनको नहीं सूट किया एंड ही वेंट फॉर सेल्फ स्टडी। आप लोग भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, कई सारे टीचर्स के पास जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ द सेल्फ स्टडी विच काउंट्स in every single thing in life, not just UPSC. So he went for self study over here. ये सेनानी विलेज में गए, ये परेशान हो गए थे लॉर्ड बुद्धा इस टाइम पे कि इनको आंसर मिल क्यों नहीं रहा इतने स्ट्रगल के बाद। यहाँ पर ही वॉज ऑफर्ड अ बोल ऑफ मिल्क राइस, समझ लो काइंड ऑफ खीर बाय सुजाता, और इन्होंने फिर प्रण लिया कि जब तक मुझे प्राप्ति नहीं होगी एनलाइटनमेंट की, मैं नहीं उठूंगा। ही टुक अ सीट अंडर द पीपल ट्री फेसिंग ईस्ट। यूपीएससी पूछ लेगा फेसिंग वेस्ट, फेसिंग नॉर्थ, तो हम लोग बोलेंगे कि यूपीएससी उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछता है ही उल्टा सीधा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी फेसिंग ईस्ट। ही रिजॉल्व नॉट टू गेट अप अंटिल एनलाइटनमेंट। ये मेथड इनके लिए काम किया। क्या हुआ फिर इनका? एट द एज ऑफ 35, बोधि ट्री को याद रखो, he attained nirvana at Gaya, Magad, People Tree, at Urvela, banks of river, Niranjana। सिर्फ इतना याद रखना है बस। अब इनको एनलाइटनमेंट हो गया, धम्म चक्र परिवर्तन की तरफ ये गए, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। एंड हिज फर्स्ट सर्मन वाज टू हिज 5 फॉर्मर कंपेनियंस। वही 5 लोग जो कहते थे कि अपने ऊपर एस्टोरिटीज करो, वो भी हार मान गए और लॉर्ड बुद्धा के पास आ गए। सारनाथ डियर पार्क में इन्होंने कोंडना, बटिया, वप्पा, महामन्ना और असाजी को अपना धम्म चक्र परिवर्तन समझाया, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। दैट वाज हिज फर्स्ट सर्मन। मेनी मोर टू फॉलो। रिमेंबर दिस सिंबल। एट द एज ऑफ 80, इन अ प्लेस कॉल्ड कुशीनारा, ही अटेंड महापरिनिब्बाना। हम लोग, कुछ लोग महापरिनिब्बाना कहते हैं, कुछ लोग महापरिनिब्बाना कहते हैं। You will follow महापरिनिब्बाना। Why you will follow this? Because NCERT says so. That's why you will follow महापरिनिब्बाना। 483 BC के अराउंड इनकी डेथ हो गई, left the world at Kushinara. So again revision: birth at Lumbini, death at Kushinara, capital at Kapilavastu, capital of the Shakya clan. Again remember this. So let's revise. Short revision. At the age of 16, he got married to Yashodhara. At the age of 29, he attained महाभिनिष्क्रमण, यानी कोई क्रम करने किसी चीज़ का बहिष्कार कर रहे थे। Age of 35, 6 years का स्ट्रगल था। 29 to 35, he attained nirvana. And then 45 years का इनका था प्रवचन देना और सरमन्स जो धम्म चक्र परिवर्तन से स्टार्ट हुआ, and he attained at the age of 80 महापरिनिब्बाना। Now फिर से रिविजन। ये सिंबल्स मैंने आपको बोला था ध्यान रखने। लोटस एंड बुल सिग्निफाइज बर्थ, हॉर्स सिग्निफाइज रेनिशिएशन, बोधि ट्री सिग्निफाइज निर्वाणा, एंड द स्तूपा सिग्निफाइज महापरिनिब्बाना। तो बुद्धा ट्रेवल्स, देखो 2014 और 15 में ना ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, इसलिए मुझे लगा एक बार आप लोग को बता दें। उसके बाद रिपीट तो नहीं हुआ,
but still you should know about Buddha travels. That is, कुछ चीज़ें हैं आई थिंक थोड़ा सा आपको ठीक से दिखेगा नहीं, बट अंडरस्टैंड दैट दिस रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया अराउंड उत्तर प्रदेश, बिहार एंड नेपाल, दीज आर द रीजन्स ऑफन फ्रिक्वेंटेड बाय लॉर्ड बुद्धा. वो बहुत इन सब जगहों पर ही अपना मैक्सिमम काम करते थे. यहाँ पर भी कपिलावस्तु लुम्बिनी, कपिलावस्तु से लॉर्ड बुद्धा की माँ जा रही थी टूवर्ड्स हर होम प्लेस वेर एवर इट वॉज, एंड शी गेव बर्थ एट लुम्बिनी. सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया, कुशीनगर में ही एक्सपायर्ड. अब हम लोग, ये तो एक जनरल हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री मैंने आपको लॉर्ड बुद्धा की बता दी. अब हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स हिज डॉक्ट्रिन्स. इसमें हम लोग सिर्फ बहुत छोटी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. फर्स्ट लेक्चर है ये, इन डेप्थ हम सेकंड में जाएंगे. यहाँ आई जस्ट वांट यू टू नो सम थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इजी टू लर्न. डॉक्ट्रिन्स में हम लोग करेंगे 4 नोबल ट्रूथ्स, 8 फोल्ड पाथ एंड कोड ऑफ कंडक्ट. बाकी जो मिडिल पाथ और अटेनिंग निर्वाणा है, दीज आर फिलोसफीज. ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने देखी थी, 3 रत्ना ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा धम्मा संघा, BDS, बुद्धा धर्मा संघा. तो 3 रत्नास ऑफ बुद्धिज्म अगर आता है क्वेश्चन में, यू विल राइट बुद्धा धम्मा संघा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है. सो द फर्स्ट इज द 4 नोबल ट्रूथ्स. पहले है द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, दैट इज दुख. अब लॉर्ड बुद्धा को ये पता चल गया था कि दुख तो होना ही है, जिंदगी है, सफरिंग रहेगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते. सेकेंड इज द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग. सो दिस इज द ट्रूथ ऑफ सफरिंग. देन देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, यानी रूट्स हैं इसके, कुछ रीज़न है कि आपको सफरिंग हो रही है. ये भी सही है कि आपका जो दुख है ये एंड होगा, देयर विल बी एन एंड टू दिस सफरिंग एज वेल. बट हाउ विल दैट हैपन? इट विल हैपन थ्रू द अष्टांगिक मार्ग. तो हम लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि 4 नोबल ट्रूथ्स का एक पार्ट है अष्टांगिक मार्ग. तो 4 नोबल ट्रूथ्स आपको बताता है कि ट्रूथ ऑफ सफरिंग, दुख होगा, कॉज ऑफ ट्रूथ भी होगा, इनका एक एंड है, और वो एंड है अष्टांगिक मार्ग. कैसे अष्टांगिक मार्ग याद रखें? देखो, अष्टांगिक मार्ग आपको कई सारी बुक्स में ना अलग अलग मिलेगा. न्यू एनसीईआरटीज में मैंने बहुत देखा, मुझे नहीं मिला. ओल्ड एनसीईआरटीज में मुझे ये मिले. राइट, ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एक्सरसाइज, मेमोरी, मेडिटेशन. इसका याद करने का तरीका है दुख. दुख यानी सैड, दुख का ये रास्ता है, सैड लेमेम. अब लेमेन नहीं है, एम है, इसलिए मैंने लास्ट में अंडरलाइन किया है, इसको रिमेंबर रखना. S फॉर स्पीच, A फॉर एक्शन, D फॉर डिटर्मिनेशन, L फॉर लाइवलीहुड, E फॉर एक्सरसाइज, M फॉर मेमोरी, O फॉर ऑब्जर्वेशन एंड द फाइनल M फॉर मेडिटेशन. सैड लेमेम याद रखना, आप अष्टांगिक मार्ग कभी नहीं भूलोगे. तो ये राइट है क्या? मैंने बोला था ना, राइट इज अ काइंड ऑफ फिलोसफी इन बुद्धिज्म. राइट का मतलब ये नहीं है सही, राइट का मतलब है द मिडिल पाथ. राइट का मतलब है एवरीथिंग इन मॉडरेशन, एवरीथिंग इन कंट्रोल्ड. सो ये मैंने यहाँ पे दे दिया है. इफ यू वांट, देयर विल बी अ लिंक टू डाउनलोड दीज एंड यू कैन जस्ट रीड दिस एंड अंडरस्टैंड व्हाट राइट मीन्स. हर एक का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट. फॉर एग्जाम्पल, राइट एक्शन पे हम लोग फोकस करेंगे. Why? You will know soon. Right action is ethical behavior in society, abstaining from killing, stealing, sexual misconduct. Right action is social, harmonious and non-harmful. Simple है, कुछ एक्सट्रीम भी नहीं है, एकदम मॉडरेशन में, एकदम मिडिल पाथ. राइट एक्शन पे क्यों बोला? क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो राइट एक्शन से निकल के आते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी. सो बेसिकली जो 5 चीज़ें होती हैं जो हर जगह हर कोई बोलता है, वही है. सिंपली याद कर लेना, डू नॉट कोट प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, वायलेंस नहीं करना है, ड्रग यूज नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्ज नहीं होना है. डन, खत्म. बट मंक्स के लिए देयर इज समथिंग एल्स एज वेल. मंक्स के लिए यू डोंट ईट आफ्टर मिड डे, यू एब्सटेन फ्रॉम डांसिंग, सिंगिंग एंड यू एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग हाई और लग्जरियस बेड्स. मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा कंफर्ट आता है, वो भी एब्सटेन करो. इफ़ यू विजिट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, देयर यू विल सी दीज 3 हैपनिंग क्वाइट अ लॉट.
That will give you an idea about how the social code of conduct worked for them. तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार. जैसे मैंने बताया था, सबसे बाहर बुद्धिज्म में है 4 नोबल ट्रूथ्स. इसका फिलॉसफी कॉज एंड एंड ऑफ सफरिंग. इनका एक पार्ट है कि एंड ऑफ सफरिंग होगा, उसका एक पाथ है. वो क्या पाथ है? अष्टांगिक मार्ग, द मिडिल पाथ या प्रैक्टिकल मेथड. जो राइट दिया हुआ है उसका है मॉडरेशन, प्रैक्टिकल मेथड, एक्सट्रीम्स में नहीं जीना है बस. और उसमें जो राइट एक्शन है उनके अंडर में आता है कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज प्रिसेप्ट्स एंड डेली रूल्स. ये आपका बेसिक कोर फिलोसफी यहाँ पे डन है. So that brings us to the end of our first part, origins and early life of the Buddha. Second वीडियो में हम लोग कवर करेंगे Buddha's core teachings, doctrines and philosophies. 4 noble truths and an eightfold path, संघ, काउंसिल, evolution और अलग अलग branches बुद्धिज्म के, Theravada, Mahayana, Vajrayana. That's it. And if you want to register for our classes, so in the description you will find a Google form जहाँ मैं demo week आपको दे रहा हूँ. We focus on a lot of revisions and a lot of practice. Thank you.